Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani. I welcome all the viewers to the lecture series of Law of Evidence. In the present video, we will discuss confession under section 24 of Indian Evidence Act. So, section 24, section 25 and section 26. In these three sections, the confession which are irrelevant. So, जितने कन्फेशन 24, 25, 26 सेक्शन में बताए हुए वो कन्फेशन इररिलेवेंट है. दोज कन्फेशंस आर इनएडमिसिबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. सो irrelevancy of confession is mentioned under section 24, 25, 26. So in this particular video we will discuss only section 24. So the title of section 24 is confession caused by inducement, threat or promise from a person in authority. So threat, inducement and promise is the essence of this particular section 24. So confession made by an accused is irrelevant in a criminal proceeding. So a confession made by the accused is irrelevant. वो irrelevant हो जाएगा, admissible नहीं रहेगा कोर्ट के सामने if the making of the confession appears to the court to have been caused by inducement, threat or promise made by any person in authority. So, if any confession is extracted by the person who is having an authority over the accused person by inducement, threat or promise, ऐसा person जिसकी वो accused पे authority है, अगर वो पर्सन बहला फुसला के या उसको धमका के या उसको कोई वादा करके अगर उससे कन्फेशन लेता है तो वो कन्फेशन इररिलेवेंट हो जाएगा, कोर्ट में वो एडमिसिबल नहीं होगा सेक्शन 24 के हिसाब से. सो and that in the view of the court such inducement, threat or promise gives reasonable ground to the person that by making the confession he would gain any advantage or avoid any evil of a temporary nature in reference to the proceeding against him. So by such an inducement, threat or promise the accused feel that he would gain any advantage or avoid any evil of a temporary nature. वो जो inducement है, वो जो बहलावना फुसलाना है या जो धमकी है या जो वादा किया हुआ है अथॉरिटी वाले पर्सन ने, तो अक्यूज्ड को ऐसा फील हो रहा है वो धमकी से कि हाँ कि अगर मैं यहाँ पर कन्फेशन दे दूंगा तो मुझे कुछ फ़ायदा हो सकता है और अगर कन्फेशन नहीं दिया तो मुझे कुछ नुकसान होता है. अगर ये दबाव में अगर वो कन्फेशन देता है तो ऐसा कन्फेशन सेक्शन 24 के हिसाब से इररिलेवेंट हो जाएगा, है ना. तो the following conditions are necessary to attract the provision of this section. There are certain essential of section 24 we will discuss in next slide. तो ये ज़रूरी है सेक्शन 24 को अट्रैक्ट करने के लिए. अब वो क्या है? फर्स्ट इसेंशियल ऑफ सेक्शन 24 इज कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस. बहला फुसला के धमकी दे के वादा करके कन्फेशन लिया हुआ रहना ज़रूरी है, तभी सेक्शन 24 अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नॉट. So the term of inducement involves a threat of prosecution if the guilt is not confessed and a promise of forgiveness if it is so done. So the term inducement involves threat of prosecution if the guilt is not confessed. Inducement का मतलब यही हो रहा है कि अगर गुनाह कबूल है नहीं बोलोगे, अगर तुम गुनाह कबूल नहीं करोगे तो तुमको सज़ा होगी और अगर तुम गुनाह कबूल है बोलोगे तो तुमको माफ़ी मिलेगी. ये इंड्यूसमेंट है. अब इससे फील होगा पर्सन को कि हाँ यार मैं अगर गुनाह कबूल है बोलूँगा तो मुझे माफ़ी मिल सकती है, मैं छूट जाऊँगा, और अगर मैं गुनाह कबूल नहीं है बोला तो मुझे सज़ा होगी. ये सोच के अगर वो कन्फेशन दे रहा है तो वो कन्फेशन इररिलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 24 में. बिफोर अ कन्फेशन कैन बी रिसीव्ड एज सच इट मस्ट बी शोन दैट इट वॉज फ्रीली एंड वॉलंटरीली मेड. सो फॉर डिसाइडिंग द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एनी कन्फेशन it must be borne in the mind that the confession must be voluntary one. Confession voluntary है, voluntariness of confession must be checked before deciding the evidentiary value. If the confession is caused by inducement, threat and promise, section 24 mention that such type of confessions are irrelevant. वैसे confession irrelevant हो जाएंगे. तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा confession को accept करने के पहले कि whether the confession is voluntary or not. Confession खुद के इच्छा से दिया हुआ है या दबाव में दिया हुआ है देखना पड़ेगा.
So thus it is clear that if threat or promise from a person in authority is used in getting a confession, it will not be taken into evidence. अगर जो पर्सन की अथॉरिटी है वो अक्यूज्ड पे, अगर उसके तरफ से ऐसी धमकी मिली है कि अगर गुनाह कबूल है, नहीं बताया तूने तो तुझे सजा होगी, और गुनाह कबूल है बोला तो तुझे माफ़ी होगी, अगर इस टाइप की धमकी के चलते अगर अक्यूज्ड कन्फेशन दे रहा है तो सेक्शन 24 अट्रैक्ट होगा और वो कन्फेशन इरेलीवेंट हो जाएगा। कोर्ट वैसे कन्फेशन को मानेगा नहीं। अब सेकंड essential of section 24 is that threat, inducement and promise from a person in authority। तो अब क्या ज़रूरी है कि जो थ्रेट और जो इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस है वो किसके तरफ से होना चाहिए? द पर्सन इन अथॉरिटी, पर्सन इन अथॉरिटी की तरफ से आना ज़रूरी है वो। द थ्रेट, inducement or promise on account of which the accused admits the guilt must come from a person who has got some authority over the matter। So such type of threat, promise and inducement must be from the person who is having any authority over the matter। मैटर पे जिसकी अथॉरिटी है उसके तरफ से इंड्यूसमेंट और थ्रेट और प्रॉमिस आना ज़रूरी है, तभी सेक्शन 24 अट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल पुलिस ऑफिसर है, कहीं ना कहीं अक्यूज को ऐसा लगेगा कि हाँ पुलिस ऑफिसर के बस में कुछ ना कुछ है कि वो मुझे माफ़ी दिला सकता है या मुझे सज़ा भी दिला सकता है, उसकी अथॉरिटी है पुलिस ऑफिसर की। अगर पुलिस ऑफिसर ऐसा उसको धमकाता है कि देख गुनाह कबूल है, बोलते मैं तुझे बचा दूंगा, और इसके चलते अगर वो अक्यूज्ड गुनाह कबूल है बोलता है तो ये पर्सन इन अथॉरिटी कहलाएगा और ऐसा कन्फेशन इररिलेवेंट होगा सेक्शन 24 के हिसाब से। अ पर्सन इन अथॉरिटी इज नॉट मेयरली अ पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट बट एवरी सच पर्सन हु कैन रीजनेबली होल्ड अवे ओवर द इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। ये जो पर्सन इन अथॉरिटी सिर्फ मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर ही नहीं होगा, इट मे बी अ क्लर्क ऑफ कोर्ट ऑल्सो, वो कोर्ट का क्लर्क भी हो सकता है। हमको ये फील होगा, हमको ऐसा लगेगा कि हाँ ये भी कुछ कर सकता है, ये जो बोल रहा है ये सही है, मुझे गुनाह कबूल कर लेना चाहिए। अगर ऐसा मन में आता है तो ऐसा समझ में आएगा कि सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस इज फ्रॉम द पर्सन इन अथॉरिटी, वो फ्रॉम द पर्सन इन अथॉरिटी से है और उस सिचुएशन में सेक्शन 24 अट्रैक्ट होगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल सच एज अ सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, पुलिस कांस्टेबल, वार्डन, क्लर्क ऑफ द कोर्ट, ऑल हैव बीन हेल्ड टू बी अ पर्सन इन अथॉरिटी। तो इस जितने पर्सन हम डिस्कस किए अभी, इसमें से कोई भी पर्सन अगर अक्यूज्ड को धमकाता है, अक्यूज्ड को कोई वादा करता है माफ़ी का, या अक्यूज्ड को इंड्यूस करता है, बहलाता फुसलाता है कि तुझे माफ़ी मिल जाएगी अगर तू गुनाह कबूल है बोला तब, तो अगर ऐसा कुछ है तो ये इंड्यूसमेंट फ्रॉम द पर्सन इन अथॉरिटी से कहलाएगा और सेक्शन 24 अट्रैक्ट होगा और ऐसे कन्फेशन इररिलेवेंट हो गए, इररिलेवेंट नहीं कहलाएंगे। इवन प्राइवेट पर्सन सच एज द वाइफ ऑफ द एम्प्लॉयर वाज आल्सो हेल्ड टू बी अ पर्सन इन अथॉरिटी, वो भी होगा। अब थर्ड जो इसेंशियल है, सॉरी, there is a one case in the parallel versus state of Rajasthan. If a friend of the accused induces him to make a confession or a relation, if he makes him a promise that if he confesses he will get him released, or even if he threatens him and the accused on that account admits his guilt, this statement will not be excluded by section 24 as the threat, inducement or promise do not emanate from a person in authority. So इस केस में क्या हुआ कि जो अक्यूज था उसके दोस्त ने उसको कहा कि देख, प्रॉमिस किया उसके दोस्त ने कि तू गुनाह कबूल है बोल दे, अगर तू गुनाह कबूलेगा तो तुझे मैं छुड़ाऊंगा, तुझे मैं रिलीज करवाऊंगा। या अगर वो धमकी भी देता है और जिस धमकी के चलते अगर उसका दोस्त गुनाह कबूल करता है, कन्फेस करता है, अब वो जो कन्फेशन है वो सेक्शन 24 में इररिलेवेंट नहीं कहलाएगा बल्कि वो रिलेवेंट हो जाएगा। व्हाई? अगर इररिलेवेंट अपने को करना है कन्फेशन तो वो जो इंड्यूसमेंट है, वो जो प्रॉमिस है, ऐसे पर्सन के तरफ से आना चाहिए जिस पर्सन की मैटर पे कोई अथॉरिटी है। अब यहाँ पर दोस्त ना तो सज़ा कम कर सकता है ना तो सज़ा दिला सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि दोस्त की उस मैटर पे कोई अथॉरिटी थी ही नहीं। सो दोस्त से मिलने वाली धमकी, दोस्त से मिलने वाला प्रॉमिस, ये सेक्शन 24 को अट्रैक्ट नहीं करेगा। बट इस सिचुएशन में अगर कन्फेशन देते हैं तो वो कन्फेशन रिलेवेंट हो जाएगा, इररिलेवेंट नहीं होगा। तो इररिलेवेंट करने के लिए पर्सन इन अथॉरिटी से वो थ्रेट या इंड्यूसमेंट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अनदर थिंग इज दैट
इंड्यूसमेंट मस्ट हैव रेफरेंस टू द चार्ज, वो जो इंड्यूसमेंट है दैट मस्ट हैव अ रेफरेंस टू द चार्ज. So this requirement is specifically stated in the section which says that the inducement must have reference to the charge against the accused. वो जो धमकी है या इंड्यूसमेंट है उसका कहीं ना कहीं जो चार्ज है उससे लेना देना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर मैं बोलूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर तुम गुनाह कबूल है बोले तो मैं तुमको 5,000 रुपये दूंगा, तो ये जो वादा है इसका चार्ज के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो ये सेक्शन 24 को अट्रैक्ट नहीं करेगा. अगर ऐसा मैं बोलकर किसी को अगर मैं बोल रहा हूँ कि 5,000 रुपये तुझे दूंगा अगर तू गुनाह कबूल है बोला, तो अगर वो गुनाह कबूल करता है, वो कन्फेशन देता है, तो वो कन्फेशन कोर्ट में एडमिसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये कन्फेशन का चार्ज के साथ ये इंड्यूसमेंट का चार्ज के साथ कोई लेना देना नहीं है. हाँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर मेरी अथॉरिटी है मैटर पे और मैं अक्यूज्ड को ये कहता हूँ कि अगर तू गुनाह कबूल है बोलेगा तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तो ये क्या हो रहा है कि जो चार्जेस तेरे अगेंस्ट में है उससे मैं तुझे बरी कराऊंगा. अगर ये है रेफरेंस टू चार्ज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर रेफरेंस टू चार्ज रहेगा तभी सेक्शन 24 अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नॉट. सो इन द केस ऑफ एम्प्रेस वर्सेस मोहनलाल, द कन्फेशन बाय अ पर्सन हु वाज थ्रेटन्ड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज कास्ट फॉर लाइफ वाज हेल्ड टू बी रिलीवेंट बिकॉज द थ्रेट डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द चार्ज. तो इस केस में क्या हुआ कि पर्सन का जो कन्फेशन है वो धमकी दे के लिया गया है, और धमकी क्या थी कि अगर तू कन्फेशन नहीं देगा तो तुझे हम जात से बाहर कर देंगे, यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कास्ट, कास्ट से हम तुझे बाहर निकाल देंगे. ये जो धमकी थी, अब ये धमकी का वो चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चार्ज अलग है उस पर और धमकी कोई अलग है. तो धमकी का अगर कोई चार्ज से लेना देना रहा तभी वो कन्फेशन इररिलेवेंट होगा, अदरवाइज कन्फेशन रिलेवेंट हो जाएगा. तो यहाँ पर जो कन्फेशन था वो ये कहकर लिया गया उससे कि तुझे हम जात के बाहर करेंगे, और उसने उसके चलते अक्यूज ने कन्फेशन दिया. कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये कन्फेशन रिलेवेंट हो गया, ये इररिलेवेंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है. हाँ, अगर उसको ये कहा जाता था कि अगर तू कन्फेशन नहीं देगा तो तुझे सजा होगी और कन्फेशन देगा तो तू छूट जाएगा, तो ये जो है ये चार्ज से लेना देना हो गया ये धमकी का. तो अब ये अगर वो देता है तो सेक्शन 24 अट्रैक्ट होगा और वो कन्फेशन इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि ये वॉलंटरी कन्फेशन नहीं होगा. So it is necessary for the confession to be excluded from evidence that the accused should labor under influence that in reference to the charge in question his position would be better or worse according as he confesses or not. तो कन्फेशन को एक्सक्लूड करने के लिए, सेक्शन 24 अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अक्यूज्ड के मन में कहीं ना कहीं ये आना चाहिए कि अगर मैं कन्फेशन दूंगा तो इसका मुझे फ़ायदा होगा, और अगर मैं कन्फेशन नहीं दूंगा तो इसका मुझे नुकसान हो सकता है. अगर ये माइंड में आने के बाद अगर वो कन्फेशन देता है तो सेक्शन 24 में वो कन्फेशन इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो कन्फेशन वॉलंटरी नहीं है, कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलने के लिए उसने कन्फेशन दिया है, तो वो कन्फेशन इररिलेवेंट होगा. अब जो लास्ट है, सफिशिएंसी ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस. दैट इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस मस्ट बी सफिशिएंट, वो सफिशिएंट होना जरूरी है. बिफोर अ कन्फेशन इज एक्सक्लूडेड, inducement, threat or promise would in the opinion of the court be sufficient to give the accused person ground that by making the confession he would gain an advantage or avoid an evil. ये sufficient होना चाहिए. कहीं ना कहीं accused को ऐसा लगना चाहिए कि मैं confession दूंगा तो इसका मुझे फायदा मिलेगा और नहीं दूंगा तो मुझे नुकसान होगा. अगर ऐसा है तभी वो सेक्शन 24 अट्रैक्ट होगा, नहीं तो नहीं. अब Consequently, the mentality of the accused has to be judged and not that of the person in authority. यहाँ पर जो accused की mentality को जज करना ज़रूरी है, ना कि वो पर्सन की जिसकी अथॉरिटी है. क्योंकि accused की mentality को जज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि accused को लगना चाहिए कि हाँ, मैं कन्फेशन दूंगा तो मुझे फ़ायदा हो सकता है. अगर ऐसा लगता है तभी सेक्शन 24 अट्रैक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, a reference to spiritual benefits such as taking an accused to a temple to confess does not fall in this category, but a promise to reduce the sentence would fall under it. तो अगर किसी पर्सन को किसी रिलीजियस प्लेस पर ले जाकर उसको कसम खिलाई जा रही है कि सच बोल तूने गुनाह करा क्या, तो वो फॉल नहीं होगा इस कैटेगरी में. वो अगर वो जाके वहाँ पर बोल रहा हाँ मैंने गुनाह किया, तो वो कन्फेशन रिलीवेंट होगा, क्योंकि वो सफिशिएंट इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं है.
बट अ प्रॉमिस टू रिड्यूस द सेंटेंस वुड फॉल अंडर इट। बट अगर कोई प्रॉमिस करता है, उससे वादा करता है कि हाँ तू कन्फेशन देगा तो तेरी सजा कम हो जाएगी, तो ये सेक्शन 24 को अट्रैक्ट करेगा और वो कन्फेशन इररिलेवेंट हो जाएगा। अभी देखो कुछ द एक्सप्रेशन व्हाट एवर you say will be used as evidence against you will not exclude a confession। अभी देखो on the other hand you better pay the money than go to jail, के आप क्या करो, बेटर है कि आप पैसे दे दो जेल जाने के बजाय। इफ यू टेल मी वेयर माई गुड्स आर आई विल बी फेवरेबल टू यू, I will get you released if you tell me the truth, have been held to be sufficient to give the accused grounds for supposing that by making the confession he would gain an advantage or avoid an evil। तो ये sufficiency of inducement, threat और promise कहलाएगा। क्या है कि आप मुझे पैसे दो नहीं तो आप जेल जाओगे। दूसरा, इफ़ यू टेल मी वेयर माई गुड्स एंड आई विल बी फेवरेबल टू यू, कि आप मुझे बताओ कि मेरे गुड्स को आपने कहाँ पर रखा है, तो फिर मैं तुमको फेवरेबल हो जाऊंगा, मैं तुम्हारी सज़ा कम कर दूंगा। आई विल गेट यू रिलीज इफ़ यू विल टेल मी द ट्रूथ, तो मुझे सच्चाई बताओगे तो मैं तुम्हें जेल से छुड़ा दूंगा, रिलीज कर दूंगा। तो ये जो है इससे कहीं ना कहीं अक्यूज को ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैं कन्फेशन दिया तो मेरा इसमें फ़ायदा हो सकता है, और इसके चलते अगर वो कन्फेशन दे रहा है तो सच प्रॉमिस इज कॉल्ड एज अ सफिशिएंट वन, सफिशिएंसी ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। तो ये जितने अगर चार जो इसेंशियल है हमने ये जो डिस्कस की, अगर ये चारों अगर एग्जिस्टेंस में होते हैं तो सेक्शन 24 अट्रैक्ट होगा। और अगर कोई पर्सन कन्फेशन देता भी है तो वो कन्फेशन इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो कन्फेशन बैला फुसला के लिया गया है, और बैलाया फुसलाया किसने, पर्सन इन अथॉरिटी ने, और उससे कहीं ना कहीं अक्यूज को ऐसा लगा है कि मुझे फ़ायदा हो सकता है, और फ़ायदा मिलने के चक्कर में उसने कन्फेशन दिया, तो वो कन्फेशन इनएडमिसिबल है, वो इररिलेवेंट है सेक्शन 24 में। सो दीज आर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।